today is the 3C challenges in new normal, that is cost, cash flow, and customer demand. Our guest speaker for today is Mr. Nitin Dixit, Director BizCraft. Our panelist for today is Mr. Manoj Agrawal, Director BizCraft, Mr. Manohar Chawla, President FGI, Mr. Paresh Saraiya, Senior Vice President, Mr. Bharat Shah, Honorary Treasurer FGI, esteemed participants, ladies and gentlemen. On behalf of the Federation of Gujarat Industries and all of us here, I am happy to extend a warm welcome to our guest speaker, Mr. Nitin Dixit, who will be conducting the webinar, and Mr. Manoj Agrawal, who will join as a panelist today. I also welcome all the participants present in the program. Something about the importance of this webinar. The objective of this webinar is to understand the factors driving the market share in this new normal situation. We shall learn about the cost optimization strategies, understand the key factors which are governing the cash flow, and know how to make the supply chain value-based rather than cost-based. The webinar also focus on how to ring-fence demand, improve cash flow, and also cost reduction. Valuable guidance on the topic, the 3C challenges in the new normal, cost, cash flow, and customer demand. Something about the FGI, the Federation of Gujarat Industries, founded in the year 1918 in the erstwhile Baroda state under the progressive rule of Sriman Sayaji Rao Gaikwad III, is an apex industries association and a recognized chamber of commerce in Gujarat, having an illustrious track record of more than 100 years in the service of trade and industry. With these few words, I conclude and thank you all for your attention. Vice President, now request Nitin Dixit to take over. Thank you. Thank you, Premal, and welcome you all to this session. I'll just put up the presentation so that everybody can also view it alongside. Just give me a moment. Can you see the presentation? Are the slides visible now? Yes, it is visible. Okay. So welcome everyone. And on this short session, which is about the 3C challenges in the new normal, we all know that this pandemic has disrupted not only businesses, but lives in a very big way. But every cloud has a silver lining, and that reminds me of the very, very famous words given by Winston Churchill, which is, why waste a perfectly good crisis? And this is a crisis. It's our choice whether we want to sulk about this, we want to be unhappy about this. There's enough to blame around. But we believe that whenever there is a problem, there's also an opportunity. And there are quite a few reasons why there are opportunities. So what I'll do today is, in next 1 hour or so, I'll take you through the views of what is the alternate way of looking at this crisis, and how can we make most out of a problem like this. And let me tell you, it will all depend on the way you look at it, whether you want to be defensive about it or you want to be offensive about it. As transformation agents, as people who have worked in making business transformation, we find that the best way to deal with this crisis is to go offensive. And that would mean that the first thing that we look for is, what are the opportunities? Because every crisis brings out opportunities. So here I'll present to you a few current concerns and what could be the possible opportunities coming out of those concerns. So the first thing is, we all would have seen volatile demand. You would not be very certain whether the demand is the same way. Is it coming next month? Is it going to rejuvenate September onwards? Will Diwali be the festival the way it used to be? There's a lot of uncertainty and there's a lot of volatility. Now, while an ordinary company might be fearful, a company which builds itself on value can look at this kind of a turbulence to gain market share. Let me explain why I say this is an opportunity to gain market share.
in times of crisis, the weak will die down. It is the strong that will survive and move forward. So while overall there is a possibility that the volume may go down a bit, this is the chance for the strength of the company to shine. And this is the chance. If you build a very, very strong company, if you work on the fundamentals, it is quite possible that you end up gaining market share. Because ultimately, customer will favor whoever is the most efficient and the best responsive supplier to them. So this discussion is in part about what can be done to come up with that strength and use that strength to gain market share. Another current concern is increased input costs. Not only is there labor shortage, but also if you see, there's a lot of extra work. The social distancing norms. Is the voice audible? I got a message saying that the voice is not audible. Premal, can you just, okay, I have some other people saying that the voice is audible. Okay, fine. Let's move on. So let's look at this concern about increased input costs. We know that with the social distancing norms and the sanitizers and the masks and the kits and all the extra work that is there, we know that the costs are increasing. Now, till there is a crisis, we don't look at some of the small things, we allow them to be because we have bigger things to deal with. But now that we know that the costs are necessarily increasing, for us to remain competitive, it is a very, very good time to reduce cost. So let me share with you a personal experience. One of my uncles, he used to live a very exuberant and lavish life, eating everything and, really partying out hard. And this continued till he got his first heart attack. And once he got his first heart attack, suddenly for him, the realization of crisis dawned on him. What that did to him was it ensured that he meant his ways. He went back to looking at having food on time, no late nights, avoiding stress, and slowly things got back to normal. Now you can look at this kind of a crisis in the same manner. In normal days, everything is fine and these kind of costs, these kind of inefficiencies will get absorbed without too much impact on the top line or bottom line. We allow things to happen. But the moment crisis is there, it is very easy to focus all the people. I want you to understand, if, as leaders of your organizations, this is a time when people will be more open to changes because they are already fearful of what can happen. So if you want to bring about any changes, especially in terms of culture, especially in terms of cost-effective culture, in terms of value culture, this is the right time because people are open to make those changes. There is less resistance that is coming on account of you asking people to do stuff that they otherwise do not like to do. So in my view, this is one of the best times to build in a culture of low cost, high value. Next, let us look at restricted cash flow. Now, this is another problem because if downstream demand is not moving and I am stuck up with my raw materials or I am stuck up with account receivables, which are large in number, then restricted cash flow is a problem to deal with. So what we'll do is we will need to build efficient supply chains. What I mean by this is in traditional business, we are so busy. We are so very busy with just making the goods move from one place to the other that what we do is ask our suppliers to absorb our inefficiencies and we absorb the inefficiencies for the customer. So what it does is the inefficiencies are still there. Only we are indirectly paying for our suppliers' inefficiency and our customer is indirectly paying for our efficiency. Let me give you an example. So if I have a problem of quality defects coming from suppliers, I may ask
or if I have a demand fluctuation, I may have asked my supplier to store the inventories for me and give me the inventories only when I want. Now, if that has happened, the inefficiency of cash flow is still there. It is just that we are not holding it, our supplier is holding it. But do you think supplier will keep on absorbing the pains? The supplier will never keep on absorbing the pains. Just like us, our supplier is also in the business to make money. So what would happen is, some way or the other, while we are not looking, those inefficiencies will be passed on to us as a cost. So this is a time not only to look inside and reduce cost and effort, but also to look across, look towards the customer and look towards the supplier, and look at opportunities that we have in terms of reducing the inefficiencies within the system, which means making our supply chains more efficient. Now, in traditional terms, we are looking at, since the business is growing and since I have people who have been long with me, even if people are not working the way they are working with them, I have to reward loyalty. I have to, sometimes we become hostage to people who have been in the system long enough and allow them to do whatever they want. But now with labor shortage, us already having lesser people, this is an opportunity which is given to us, that we can build systems that reduces our reliance on the people. So I can reduce effort and cost. And if you see, in all of these cases, it is not that the opportunity did not exist earlier. It is just that now in the current situation, this opportunity has become more meaningful. It has become more meaningful, like that uncle of mine who had all these requirements, but decided to work on them only when the crisis hit. So I would say, let us start looking at this crisis in terms of an opportunity and not in terms of a problem. A problem will be there. Let us bring out an opportunity, which brings us to the 3 C's that run our business. Now, all of you who have ever been in class 5th, 6th, 7th would have seen this formula. It is taught in the middle schools, which is profit is equal to price minus cost. They write it as P is equal to SP minus CP. Profit is equal to selling price minus cost price. If I look at this equation, in this equation, when I look at it from profit perspective, I say I can increase profit by reducing cost and increasing price. That's how the formula comes up. Now, if you look at in current situation, price is based on market. Price is not something that we can fix. If we fix price, if we try to keep on increasing price based on our costs, then slowly our demand will die down and somebody else, some competitor, will be able to grab our business. So price for us is no more something that we control directly. Price is in the hands of the customer. It is in the hands of competitor and the market environment. So while we can do some things about price, the control that we have on price is very limited. And for that, the C that we look at is customer demand. Customer demand, if we are able to give to our customer something that he cannot get from other places, then I would be able to raise the prices. So think about it. Some of you might have a favorite shirt brand, let us say, a favorite brand of shirt. And sometimes you know that even though it is expensive, you want that brand only because it delivers you some value. Something maybe in terms of the fit to your body shape, maybe it could be the kind of cloth, maybe it could just be the logo, just the fact that you are wearing a logo that you are comfortable with. That may be the reason. So if we want to increase price, if we want to increase profitability, we need to figure out what drives customer demand. If I try to be just like everybody else, if I'm delivering to customer the same product that everybody else is delivering, then it is quite likely that customer will compare me to other competitors and ask me if the other competitor is also giving me the same thing. I will go with the cheapest one. So unless you reduce prices, you will not have demand. So the trick with customer demand, the C of customer demand, the trick would be, how can I increase the value that I deliver to the customer so that I can get a higher price for a similar thing. The other 2 C's are related to cost. One, of course, is the operational cost, as you know it as OPEX, operational expenses, which is about
making the product, or which are the actual costs on delivering the service. And then you have a hidden cost, which is the cash flow cost. Now, every time you have a working capital, you borrow money, you are paying interest on it. The moment your inventory increases, the moment your accounts receivable increase, your requirement of this cash increases, which means your borrowing increases, and you are not only paying the interest cost. If this cash flow or working capital is tied up in form of inventory, then you also end up paying for extra space. You also end up paying for people maintaining that inventory. And when you have stored materials for a long time, they also go bad. So if you have metallic parts, they are likely to be rusty. If you have fragile parts, there is likely to be breakage. There's likely to be pilferage. Some things will get stolen. Some things will get lost. I do not know whether you have experienced that, but over these 24 years that I have been with the industry, one of the repeated complaints, even in large companies, is we had bought the material. My record shows that the material is there, but I can't find it because my storage is haywire. And why is my storage haywire? Because I already have too much of inventory. All of this impacts cost, cash flow. It is just that it does not become very visible in your profit and loss statement, but it is there. So if we look at this opportunity in the new normal with these new constraints, these are the 3 C's. If we control them, if we work on them, we can get our business up and running. So the first one is customer demand. The second one is cost. And the third one is cash flow. Let's look at the first one, which is ring fencing customer demand. And for that, we will use a very, very simple method. One of the problems with following improvements and methodologies, it goes into too many jargons. So my attempt today is that I keep out the jargons and I try to communicate with you in very simple business terms. So wherever you feel that this is a jargon you're not understanding, you can put in a comment, and as the comment flashes, I will try and answer then and there itself. Otherwise, we will have a Q&A section wherein I will answer. So let's look at the 3 questions. The first question is, who is our customer? Second question is, what do they actually want? And the third question is, why will they prefer me over my competitor? Your entire customer demand game, which is whether you will get volume or whether you will get high price, depends on whether you have understood your customer, you have understood what they want specifically, and you reason as to why you are superior to the competitor. If you build these 3 things, your demand has not got anywhere. I can assure you that you will gain market share. So let us look at how to do this. So first step is segment your customers clearly, which means your customers need to be sharply targeted. If you try to please everybody, कि मैं इसको भी दे दूं, मैं उसको भी दे दूं, मैं सब तरफ चला जाऊं, you are likely to be having a problem because you cannot please everybody all the time. If you make a product which pleases somebody, it will end up displeasing somebody. So the first thing is to have a very sharply targeted customers. Customers को चुने डिमांड मिलती जुलती है, जो एक तरीके के से बिहेव करते हैं. सिर्फ यही नहीं कि हम अपनी टारगेट करें अपने कस्टमर्स को, कस्टमर सेगमेंट्स को. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट दे शुड हैव एन इकोनॉमिक स्केल. If I figure out, if I say, okay, let's say there is a demand of high-end sofas. I'm just giving a random example. And there are, or let me say, there's a demand of fighter jets. Let me take a different kind of an example. And in the world, there are only 5 people who are going to buy a fighter jet. The economic scale may not justify me focusing on that demand if it does not gel with my product portfolio. So first, target the customer properly and then target those sections which have an economic scale. Do understand कि आज जो चीज चल रही है जरूरी नहीं है कि वो आगे चलती रहेगी, और सिर्फ इतने ही कस्टमर नहीं है. तो तीसरा पार्ट है ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए उसमें. इकोनॉमिक स्केल आज की डिमांड के बारे में बताता है, ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर की डिमांड के बारे में. तो जब आप अपने कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो 3 चीजें देखनी है उसमें. वो शार्पली टारगेटेड होने चाहिए,
ऐसे कि आपने कहा इनकी हम सारी डिमांड मीट करेंगे. इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, जिनके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करके डिमांड मीट कर सकते हैं. सेकंड, उनका इकोनॉमिक स्केल होना चाहिए जिससे कि आपको रिटर्न्स मिल सके आपके एफर्ट के, और ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए जिससे ऐसा ना हो कि आज का काम तो चल जाए बट फ्यूचर हमारा उतना ब्राइट ना रहे. This is the input on how to segment the customer. Once you segment the customer, the next step is to look at the product portfolio. उनको चाहिए क्या? इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं: वैरायटी, प्राइसिंग एंड सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स. You know that more the variety, जितने ज्यादा आपके पास वैरायटी के प्रोडक्ट होंगे उतना ज्यादा कस्टमर आपको प्रेफर करेगा. क्यों? क्योंकि आप उसकी मल्टीपल डिमांड्स मीट कर पा रहे हैं. बट एट द सेम टाइम जैसे ही आप वैरायटी बढ़ाते हो, आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, आपका कैश फ्लो आउट हो जाता है. सो यहां से बैलेंसिंग एक्ट शुरू होता है. यू हैव टू कम अप विद द राइट वैरायटी दैट इन योर शार्पली टारगेटेड कस्टमर्स यू आर एबल टू गिव द मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इम्पैक्ट. द सेकेंड थिंग इज प्राइसिंग. हर कस्टमर की जो वैल्यू नीड्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर प्राइस बैंड पे मैच करती है. सो देयर इज अ प्राइस बैंड दैट यू आर फोकसिंग ऑन. नाउ इफ यू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक प्राइस बैंड, देन इट इज इजियर फॉर यू टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट को करना है, कौन से प्रोडक्ट को नहीं करना है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. एविएशन इंडस्ट्री में काफी प्रॉब्लम आई, बट लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ इंडिगो. किस तरीके से काम करते हो, बट उन्होंने अपने लिए बहुत स्पेसिफिक टारगेट करके रखा हुआ है दैट वी विल सर्विस ओनली दोज कस्टमर्स, शार्पली टारगेटेड कस्टमर्स, जिनको सिर्फ ट्रैवल की वैल्यू चाहिए, जो इतना प्राइस पे कर सकते हैं टिकट का, और हमको क्लियर है हम उनको कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देंगे, कोई नई चीजें नहीं देंगे. बट इस प्राइस बैंड में इस कैटेगरी के कस्टमर्स को हम बहुत अच्छे से सर्विस करेंगे, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि बस हम टाइम से पहुंचे और एक बेसिक मूवमेंट हो जाए. तो इफ यू सी देयर एंटायर स्ट्रेटजी इज बेस्ड अराउंड अ शार्पली टारगेटेड सेगमेंट एंड द राइट काइंड ऑफ प्राइसिंग दे हैव डन, व्हिच हेल्प्स देम टू इवन गो टू द एक्सटेंट कि वो अपने स्टाफ को कैसे कंट्रोल करते हैं कि वो अपने स्टाफ को ओवरनाइट स्टे भी नहीं करवाते कहीं पर. सो इवन देयर सिलेक्शन की वो कौन कौन से रूट्स पे फ्लाइट्स चलाएंगे, वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि उनको कॉस्ट ना करनी पड़े अपने क्रू की दूसरी जगह पर ओवरनाइट स्टे करने की. सो दे हैव द सेम डे रिटर्न पॉलिसी. वो लंबी फ्लाइट्स लेते ही नहीं है. सो द सिलेक्शन ऑफ शार्पली टारगेटेड कस्टमर goes into the variety and pricing, and from that, if you know this, then you can very easily answer the value proposition. Why us? Because we meet your needs. We should be able to meet their needs. Then whatever we are doing has to be our strength, and I should be able to add value in a manner that nobody else can. अगर आप ये पूरा सेक्शन देखो, नॉर्मल बिजनेस करते समय हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं कि आज ये कस्टमर आ गया, हम देख ले इसकी डिमांड मीट कर सकते हैं, कल ये आ गया. और अगर आप सेल्स के एंगल से देखो, अगर आप एज अ लीडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यू वुड कॉन्स्टेंटली बी हैविंग योर सेल्स टीम कमिंग बैक एंड टेलिंग यू, वो वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बताते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होता है. बट क्या होता है, जिस समय इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है उस समय तो वी हिच ऑन और हम अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाते जाते हैं. लेकिन जब इकोनॉमी श्रिंक करती है तो वही चीजें हमारे पास स्लो और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री बन जाती है, और वही चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है. तो अब जबकि हमको मालूम है कि यहां पर क्राइसिस है, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, अपने वैल्यू प्रपोजिशन को रीसेट करने का ये सबसे अच्छा टाइम है, और उसके 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप, ये डिसाइड करो कि किस किस कस्टमर को सर्व करोगे, विच मींस किस कस्टमर को आप जाने दोगे. थोड़ा पेन होगा, दिल में दर्द होगा कि अच्छा ये कस्टमर का इतना बिजनेस चला जाएगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इमीडिएटली उस बिजनेस को बंद कर दो, ऑल्टरनेट डेवलप करो जिससे लॉन्ग टर्म में आप पैसे बना सको. सेकेंड स्टेप, उन कस्टमर्स के एंगल से अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेज करो. ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको प्रॉब्लम देगा कैश फ्लो की,
बहुत छोटा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ग्रो नहीं करने देगा। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है, और उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो भी लीस्ट कॉस्ट ऑप्शंस है वो बनाने से आपका वैल्यू प्रोपोजिशन सेट होता है। सो हर किसी का अपना वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। ये क्राइसिस बहुत अच्छा टाइम है अपने बिजनेस प्लान को रीलुक करने का। दिस इज द टाइम व्हेन यू रीलुक एट योर बिजनेस प्लान and you reset what is your product portfolio, what is your strategy to capture market। मैं आपको एक बात कंफर्म कर रहा हूं, अगर आपने ये पीस नहीं किया, कॉस्ट रिड्यूस कर लिया, आप टेम्पररी तो इंप्रूव कर जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब आप कस्टमर डिमांड के पीस को हैंडल कर पाएंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द C's, which is customer demand। Now let us look at the cost optimization, which is the second C। यहां पर मैं आपसे 6 स्ट्रेटजीज बात करूंगा, जिसमें से 3 स्ट्रैटेजीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे, और 3 स्ट्रैटेजी आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, बट 1 घंटे का टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है कि हम इन स्ट्रैटेजी की डिटेल में देख सकें। सो लेट अस लुक एट व्हाट दीज 6 स्ट्रैटेजीज आर। सबसे पहला है सेपरेट वैल्यू एडेड फ्रॉम वेस्ट। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज हम हर काम जब भी हम करते हैं उसमें कुछ कॉस्ट लगती है, और अगर हमने हर चीज के पैसे देने शुरू कर दिए तो क्या होगा, धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और जो हमारा इक्वेशन था प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट, उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम होता जाएगा। सो वी विल लुक एट सम पार्ट इन डिटेल कि हम वेस्ट और वैल्यू को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, और ये बहुत ही कोर प्रैक्टिस है आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सेकेंड स्टेप, जैसे हमको पहले पहचान आ जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें से क्या वैल्यू एडेड है और क्या वेस्टफुल है, क्या नॉन वैल्यू एडेड है, हमको उसको मेजर करना शुरू करना पड़ेगा, इससे हमको कितना दर्द हो रहा है। नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप में से किसी ने कभी वेट लॉस करने की कोशिश करी है, या आपने कोई अपनी पर्टिकुलर पैरामीटर इंप्रूव करने की कोशिश करी, लेट्स से आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, आप अपना टाइमिंग मैनेज करना चाहते हैं, तो व्हाट डू, यू स्टार्ट मेजरिंग। जो भी आउटकम आप चाहते हैं वो स्टार्ट कर दें मेजर करना। जितना वो आपकी आंखों के सामने पड़ेगा, आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये अधूरा टास्क है जो मुझे कंप्लीट करना है। तो अगर आप रोज अपना वेट मॉनिटर कर रहे हैं और कभी आपको लालच आता है कि आज मैं आइसक्रीम खा लूं, तो आपके पास क्या होगा, बैक ऑफ द माइंड में रहेगा, मेरा टारगेट था इस वेट से इस वेट पे जाने के लिए, अगर मैं ये आइसक्रीम या ये डेजर्ट खाता हूं तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं डिसाइड करूं हाँ या ना, गाइड हो जाएगा इस मेजरमेंट से। बट अगर ये मेजरमेंट ही नहीं, अचानक आपको पता चलता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड द वेट इज इंक्रीजिंग, then all you can do is you can say, oh, something went wrong. So if you want to improve cost, you have to start measuring the cost। और हम सारी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक बार आपने सेपरेट आउट कर लिया what is value added and what is non value added, start measuring the impact of non value added cost। ये वाला पीस भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में आगे चल के बताता हूं। The third thing is identify the constraints। अब जब आप कहते हो कि ये एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड है, ये जानते हुए भी कि ये एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड है, हम क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि हम करना चाहते, कोई भी घर से ये सोच करके नहीं आया कि आज मैं काम को खराब करूंगा, बट हमारे रास्ते में कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अब उन कंस्ट्रेंट्स को पार पाने के लिए, क्योंकि हम ये मान के बैठ जाते हैं ये कंस्ट्रेंट तो है और ये कंस्ट्रेंट रहेगा, तो हम क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेट रास्ता निकालते हैं कि अगर हम सीधे जा रहे थे, अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे और हमारे सामने एक कंस्ट्रेंट आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे जाने के बजाय हम कहते हैं ये कंस्ट्रेंट का तो कुछ नहीं कर सकते, हम एक्स्ट्रा घूम करके आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि ये कंस्ट्रेंट ब्रेक कैसे हो सकता है, तो हम दशरथ मांझी की तरह काम करते हैं। जिस पहाड़ के आसपास घूम करके जाते थे और वेस्टफुल एक्टिविटीज करते थे, अगर हम उस पहाड़ को ही काट करके उसके अंदर से रास्ता निकाल लेते तो हमारी कॉस्ट बहुत बच जाती है, क्योंकि वेस्टफुल एक्टिविटीज जो हम घूमने की वजह से कर रहे थे वो सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स। ये 3 स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि हम वैल्यू एक्टिविटीज को वेस्ट एक्टिविटीज से कैसे सेपरेट आउट करें, हम वेस्ट एक्टिविटीज को मेजर कैसे करना शुरू करें, और क्योंकि वेस्ट ओनली एक सिम्टम है, उसके पीछे कंस्ट्रेंट क्या है, किस रीजन से मुझे ये वेस्ट
के साथ रहना पड़ रहा है उसको हम देखें। तो ये 3 को मैं थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ करूंगा। इसके अलावा और 3 चीजें हैं जो आप करते हैं, जो कि जिसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड है। आप जितनी वैरायटी लोगों को दोगे, जितने अलग अलग तरीके से काम करने के लिए लोगों को फ्रीडम देते हो, उतने ही अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। बहुत सिंपल चीज है, जितना हो सके चीजों को स्टैंडर्डाइज करिए। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब चीजों को ब्यूरोक्रेटिक बनाना नहीं होता। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं कि लोगों को काम कैसे करना है और आउटपुट कैसे स्टैंडर्ड लाना है उसको देख सके। दूसरा, हर कंट्रोल को विजुअल बना दें। जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है उसके ऊपर आप एक्शन लोगे। जैसे अगर आप देखो कि आपने ध्यान दिया होगा कि जो मैकेनिक्स होते हैं वो डार्क ब्लू या ग्रे कलर के कपड़े पहनते हैं मैकेनिक्स, और जबकि डॉक्टर है वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अगर आप देखो तो बहुत सिंपल रीजन है उसका। मैकेनिक्स क्या चाहते हैं, वो ऑयल में, डस्ट में, डर्ट में काम करते रहते हैं। दे वॉन्ट टू हाइड द स्टेन्स, वो अपने दाग छुपाना चाहते हैं जिससे कि वो काम करते रह सके गंदगी में भी। बट एक डॉक्टर के लिए गंदगी में काम करना मतलब पेशेंट को कंटामिनेट करना। तो डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि वो गंदगी में काम करे, तो वो क्या करता है, वो व्हाइट कपड़े पहनता है जिससे कि अगर थोड़ा सा भी कंटामिनेशन हो, कहीं पर भी दाग होगा, वो तुरंत विजिबल हो जाएगा। और जब वो विजिबल हो जाएगा तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकोगे। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी यही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने ऊपर बात करी वेस्ट कॉस्ट को मेजर करने की, वेस्ट को विजिबल करना, अपने कंट्रोल्स को विजिबल करना, विजुअल तरीके से लगाना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर आपके पास इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, आपने इन्वेंट्री को बना दिया, एक वॉल में, दीवार में निशान लगा दिया कि जब इसके ऊपर डब्बे बढ़ जाए इसका मतलब जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री हो गई है, मुझे कुछ एक्शन लेना है। तो आपको जैसे ही उस जगह पर स्टैकिंग में, दीवार में लाइन के ऊपर डिब्बे लगने शुरू होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्शन लेना है। लेकिन अगर आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेंट्री कहीं कहीं अलग अलग जगह फैक्ट्री में पड़ी हुई है तो आपको कभी दिखाई नहीं देगा कि इसके ऊपर एक्शन लेना है। सो जो 5वां पॉइंट है विच इज मेक कंट्रोल्स विजुअल, ये ऑनगोइंग बेसिस पे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑनगोइंग बेसिस पे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है मिस्टेक प्रूफिंग। जितना हो सके गलतियों को ना होने देने का काम करें, प्रिवेंशन पे इन्वेस्ट करें बजाय इसके कि हम डिटेक्ट करने पे इन्वेस्ट करें। और इसको भी हम आगे देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपका फोन का जो सिम कार्ड है उसका एक कॉर्नर कटा हुआ है और आप उसको सिर्फ एक ही तरीके से फोन में लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से नहीं लगा सकते। एक बार मिस्टेक प्रूफिंग हो गई तो आपका टाइम बचता है और आपके एरर्स बचते हैं। जब आपका टाइम बचता है, एरर्स बचते हैं, ओवरऑल आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो लास्ट 3 आइटम्स आपके लॉन्ग टर्म कॉस्ट रिडक्शन के स्ट्रेटजीज हैं, बट वी विल डिस्कस द फर्स्ट 3 आइटम्स इन अ लिटिल मोर डिटेल नाउ। Let's start off with the first one, first cost optimization strategy, which is value versus waste. और यही सबसे बड़ा एक्सेस है। जिस चीज को आप देख नहीं सकते उस चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे हैं और या कभी आप बच्चे रहे हैं तो आपने देखा होगा, वी टॉक अबाउट अ थिंग कॉल्ड जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमको कहते थे कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, ठीक कर लो। एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू थिंक दैट द अदर पर्सन इज रॉन्ग, कि इनको नहीं समझ में आता, समय बदल गया है, इनको नहीं समझ में आता, हम जो कह रहे हैं वो सही है। सो व्हाइल दे केप्ट ऑन टेलिंग द प्रॉब्लम, आई वुड नॉट वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉब्लम। सो ये उस जगह पर काम करता है। आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी को क्वेश्चन नहीं करोगे जिसको आप एज अ वेस्ट देख नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हम जो बहुत सारी सैकड़ों, हजारों, लाखों एक्टिविटीज जो दिन में करते हैं उसमें से वैल्यू और वेस्ट को कैसे अलग अलग करें। ये पहली स्ट्रैटेजी है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वैल्यू क्या है, वो चीज जो कस्टमर को चाहिए और कस्टमर उसके लिए पैसे भी देने को तैयार, उन सब चीजों को हम वैल्यू कहते हैं। क्या क्या होगा इसका मतलब सबसे पहली चीज होगी कि हम जो भी चीज बना रहे हैं उसमें कोई फिजिकल चेंज आना चाहिए।
फिजिकल चेंज, जैसे अगर मैं लेट अस से एक डब्बा बना रहा हूं, सिंपल डिब्बा बना रहा हूं, तो मैंने डिब्बे के कागज को काटा, ये एक फिजिकल चेंज है। अगर वो फिजिकल चेंज हो रहा है और वही चीज और वो चीज कस्टमर को चाहिए, विच इज द सेकेंड पॉइंट, तब ये एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। लेकिन मैंने डिब्बे को उठाया और यहां रखा, ये वैल्यू एडेड नहीं है। ये करना पड़ रहा है। ये करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मेरा स्टोरेज कहीं और है और मैं काम कहीं और कर रहा हूं। तो जो मुझे उठाना और रखना पड़ रहा है, ये जो मूवमेंट है, ऐसा लगता है कि ये तो होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं है कि ये हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो देखता हूं, पिज्जा हट को लूं और डोमिनोज को लूं, इन दोनों के अलग अलग मॉडल हैं। पिज्जा हट क्या करता है, अपने स्टोर में ही अपना आटा गूंथता है, डो बनाता है और वहीं पर पिज्जा सर्व करता है। जबकि डोमिनोज एक फैक्ट्री में, इंडिया में चारों तरफ 4 जोन्स हैं, क्योंकि मैंने डोमिनोज के लिए भी काम किया हुआ है। 4 जोन्स हैं, वहां पर सेंट्रली डो बनता है एक जैसा, और उसके बाद वो सब जगह जाता है। तो अगर आप देखो तो कुछ एक्सचेंजेस होते हैं कि जैसे मुझे इन्वेंट्री क्यों बनानी पड़ती है, मुझे बना करके क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अब एक ट्रक है, जब वो एक ट्रक पूरा तैयार होगा तभी वो जा सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक ट्रक जा सकता है, तो मुझे बना बना करके इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। अब कहने को तो ये होता है, ये तो जरूरी है, अगर हम ये करेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम भेजेंगे कैसे माल। बट अगर आप देखो तो ये एक्चुअली कोई चेंज इन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कस्टमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको दिल्ली से आगरा भेज रहे हो या आप उसको बॉम्बे से बड़ौदा भेज रहे हो। कस्टमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इसलिए भेज रहे हो क्योंकि आपने ये प्लान बनाया हुआ है। इट इज नॉट व्हाट द कस्टमर वांट्स। तो आपकी सबसे बड़ी स्किल होगी कि आप ये देखना शुरू कर पाओ कि क्या वैल्यू एडेड है और क्या नहीं है। और तीसरी चीज जो हम चेक करते हैं वैल्यू में, वो ये है कि चेंज इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम रीवर्क कर रहे हैं, अगर हमने पहले चीज को बना लिया और फिर हम कह रहे हैं अरे ये तो खराब हो गई, हम इसको ठीक करके भेज रहे हैं, तो ये भी वैल्यू एड नहीं है, ये भी नॉन वैल्यू एड है। और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी मशीनें पहले हमको, या हमारे लोग हमको पहले सही प्रोडक्ट नहीं दे रहे थे। तो एक आदमी पहले उस पर काम कर रहा है, अपना एफर्ट लगा रहा है, जिसको हम पैसे दे रहे हैं, और फिर उसी काम को दूसरा आदमी कर रहा है, तो ये वेस्ट हो गया। अगर हमने वैल्यू समझ ली कि वैल्यू के 3 पैरामीटर्स हैं, प्रोडक्ट चेंज होना चाहिए, कोई कैरेक्टरिस्टिक बदलनी चाहिए, ये वो चीज होनी चाहिए जो कस्टमर को चाहिए, और ये पहली बार होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, मार्किंग करते हैं, अगर हमने डब्बा काटने का एग्जांपल लिया था, मार्किंग करते हैं, मार्किंग कस्टमर को नहीं चाहिए। प्रोडक्ट में तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये कस्टमर को नहीं चाहिए। कस्टमर को क्या चाहिए? कटा हुआ डब्बा चाहिए। आप बिना मार्किंग के काट सकते हो, आप बिना मार्किंग के काट। तो जहां डब्बा कट रहा है, जहां फोल्ड हो रहा है, वो सारे वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। बट जहां डब्बे पे मार्किंग हो रही है, या डब्बे का जो कागज है वो उठ करके एक जगह से जगह जा रहा है, या हम डब्बे को घुमा रहे हैं, ये सारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ये वो एक्टिविटीज हैं जिनको हम वेस्ट कह सकते हैं, जिसमें हमारा पैसा तो लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को तो पे कर रहे हैं, लोगों का टाइम लग रहा है। जितना हम लोगों को पे कर रहे हैं, जितनी ज्यादा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज लोग करेंगे, उतना ज्यादा वो लोग, या ये कहिए उतना कम प्रोडक्टिविटी वो लोग दे पाएंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक श्योर शॉर्ट तरीका है वैल्यू को वेस्ट से हटा लो। और वेस्ट क्या है? अगर मैं उसकी डेफिनेशन दूं, व्हाट कस्टमर विल पे फॉर ओनली इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर कस्टमर के पास और कोई जरिया नहीं है, तो वो कुछ आपको पे करेगा। जैसे अगर नागपुर के संतरे नागपुर से आते हैं, पुणे की स्ट्रॉबेरी पुणे, और आपको मालूम है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आप एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे वहां से लेकर के आने। लेकिन अगर किसी ने वही स्ट्रॉबेरीज आपके इलाके में लेटर से बड़ा शुरू कर दी, एनवायरमेंट कंट्रोल करके, और वो आपको चीपर मिलने लग गई, तो जो ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे थे, जिसके लिए आप पे कर रहे थे, वो आप पे करना बंद कर दोगे। आप वही प्रोडक्ट अपने पास से देखोगे। विच मीन्स वेस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि ये वेस्ट तो जरूरी है करना। इसलिए समझना ये जरूरी है कि ये वेस्टफुल एक्टिविटीज जरूरी इसलिए होती हैं क्योंकि हम उनका कंस्ट्रेंट नहीं तोड़ पा रहे हैं। जब हम तीसरी स्ट्रैटेजी देखेंगे,
उसमें हम देखेंगे कि हम कंस्ट्रेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें। सो क्या क्या वेस्ट होती है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, 7 वेस्ट कहलाती हैं। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं क्योंकि ये इतना बड़ा सेशन नहीं है कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बता सकूं, बट आपको जब कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो आपको ये देखना होगा कौन कौन सी एक्टिविटी है जो वेस्टफुल है। जब तक आप वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप उनको कम करने पर काम नहीं कर पाओगे। तो ये 7 वेस्ट हैं जिनको हम टिम वुड कह सकते हैं। पहली है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी है इन्वेंट्री, तीसरी है मोशन, मोशन मतलब आदमी मूव कर रहा है बट कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है। वेटिंग, बहुत बार आपके लोग बैठे हुए हैं, मशीन नहीं काम कर रही है या माल नहीं आया है और लोग वेट कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। ओवर प्रोसेसिंग, अगर मुझे एक बार फाइलिंग करनी है, एक बार नट टाइट करना है तो मैं 4 बार नट टाइट कर रहा हूं इंश्योर करने का, ये सोच ज्यादा करने से हो जाएगा। जैसे हम लोग लॉक करते हैं अपनी कार और उसके बाद फिर चेक करते जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि पहली बार में सही हुआ नहीं होगा, 2 या 3 बार चेक करते हैं या 2 या 3 बार टाइटन करते हैं। ये सारे ओवर प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है ओवर प्रोडक्शन, जो चाहिए उससे ज्यादा बना करके रख लेना और बाद में उसकी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री बन जाती है। और फाइनली डिफेक्ट्स, तो इसको याद रखने का एक छोटा तरीका है, इसके पहले लेटर्स को आप मिला दें तो बनता है TIMWOOD, टिम वुड। याद रखने का तरीका है, बट इसके ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप मनोज से और मुझसे बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं व्हेन वी कैन गो थ्रू अदर स्टेप्स। बट आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है इस समय वेस्ट को आइडेंटिफाई करना, बिकॉज ये वो चीज है जिसपे आप पैसे तो खर्चा कर रहे हो बट कस्टमर आपको पे करने को नहीं तैयार है। जिस दिन कस्टमर को ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल गया उस दिन वो आपके पास से हट करके दूसरे के पास चला जाए क्योंकि वो उसको चीपर ऑप्शन दे रहे हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज मेजरमेंट। यहां पर हम मेजर क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मेजर। हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं, जैसे हमने बात करी कि उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, अब ये कॉस्ट हम किस जगह पर पे कर रहे हैं उससे पता चलता है कि उसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। सबसे बुरी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। इसका मतलब हमने बना करके भेज दिया कस्टमर के पास और कस्टमर के पास जाकर के डिफेक्ट पकड़ा लिया, इससे हमको कस्टमर पेनाल्टीज मिलती हैं, कंप्लेंट आती है, लोग भाग रहे हैं, लॉजिस्टिक्स लग रही है, हमारा टैक्स लॉस हो रहा है, ऑर्डर लॉस हो रहे हैं। तो सबसे बुरा है एक्सटर्नल फेलियर। जब फेलियर तब होता है जब डिफेक्ट कस्टमर के हाथ में पहुंच जाता है। इससे बेटर है, इससे बचाने का तरीका है कि हमारे यहां पर फेल हो जाता है। लेकिन जब हमारे यहां पर फेल होता है तो हमको किस तरीके के पैसे लगते हैं, रीवर्क, और लोग लगा करके हम उसको रीवर्क करते हैं। कभी कभी स्क्रैप भी करना पड़ता है। तो जो चीज मेरी 200 रुपए किलो बिक सकती थी वो 20 रुपए किलो में मुझे स्क्रैप में निकाल देनी पड़ती है। डाउनग्रेड, कि हम उसको ए ग्रेड का माल बनाने के बजाय बी ग्रेड का माल बना करके निकाल देते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हैवी डिस्काउंट देना पड़ता है। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो क्या है, क्योंकि हमने क्वालिटी को वैसा नहीं बनाया जैसा हमको आउटकम चाहिए था, उसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है। तो ठीक करने का खर्चा लग रहा है, या उसको फेंक देने का खर्चा लग रहा है, या फिर उसको कम ग्रेड का बना करके बेच देने का खर्चा लग रहा है, डिस्काउंट ज्यादा लग रहा है। तो एक्सटर्नल फेलियर से बेटर है इंटरनल फेलियर, इंटरनल फेलियर से बेटर है अप्रेजल। अब ये कॉस्ट क्या लगती है, जहां पर आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं। मैंने ऐसी भी कंपनीज देखी हैं जिसमें एक ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर पे एक इंस्पेक्टर है, जो पूरी कंपनी इंस्पेक्शन पे चल रही है। और कमाल की बात यह है, इतने के बाद भी डिफेक्ट निकल करके कस्टमर के पास चला जाता है। तो इंस्पेक्शन करना एक इंटरिम तरीका है, बट ये बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है, प्रिवेंशन। ये प्लानिंग और ऑप्टिमाइजिंग के साथ में हम अगर एरर प्रूफ कर देते हैं, हम गलतियां होने से बचाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि शुरुआत में देखने में लगता है कि अरे इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। तो आपकी चॉइस है, या तो आप एक बार में पैसा दे करके आगे के लिए अपना कॉस्ट बचा लो, या धीरे धीरे करके खून बहता रहेगा, आप उसको देख लो। अगर मैं कंटिन्यूम पे देखूं तो जो ऊपर की साइड है, जो रेड साइड है, दैट इज द वर्स्ट ऑफ द कॉस्ट। जब आप वहां पर पैसा लगाते हो तो आपके पास सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है, सबसे ज्यादा आपका पैसा खर्च होता है जब एक्सटर्नल फेलियर पे आता है। बट लॉन्ग टर्म में सबसे कम पैसा खर्च होता है जब आप प्रिवेंशन पे जाते हो। पर हम क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि हम इस जगह पर अटक जाते हैं। जो एवरेज परफॉर्मर्स हैं वो क्या देखते हैं, वो कहते हैं भाई अभी मैं इस पे खर्चा नहीं करना चाहता प्रिवेंशन पे, तो ज्यादा लोग लगा दो
और ठीक कर करके भेजो। धीरे धीरे क्या होता है, आपकी ये जो छोटी सी शॉप होती है ये बढ़ती चली जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके यहाँ जो छोटा सा रिवर्क, एक बार का रिवर्क शुरू हुआ था, आज वो कितनी बड़ी शॉप होगी, कितनी सारी लेबर आपकी सिर्फ चीजों को रिवर्क करने में लगी हुई है। तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम प्रिवेंशन को देख नहीं पाते कि इसका क्या बेनिफिट। सो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप मेजर करना शुरू करते हो तो आप मेजर करके पहले आप टॉप लाइन को खत्म करते हो, फिर आप सेकेंड लाइन को खत्म करते हो। ज्यादातर कंपनियां यहां रुक जाती हैं कि हम सेकेंड लाइन को हमने कम कर दिया और पूरी तरीके से इंस्पेक्शन पे बेस हो। अब आपकी जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो बाहर ना हो करके इंस्पेक्टर्स पे लग रही है। ये इंस्पेक्टर्स वो हैं जो चेक कर रहे हैं। आप ध्यान दो, कोई प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है, काम कर रहे हैं इंस्पेक्शन। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ये कॉस्ट बचानी है तो यू मूव टू प्रिवेंशन, जिससे कि आप ओवरऑल कम कॉस्ट में आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सको। क्योंकि इंस्पेक्शन या अप्रेजल कॉस्ट का, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपके कस्टमर के पास कोई डिफेक्ट नहीं जाएगा। डिफेक्ट बनेगा तो आगे तक जाएगा। तो इसलिए डिफेक्ट को बनने से रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका तरीका है, एज द ओनर, एज द लीडर ऑफ द कंपनी, आप मेजर करना शुरू करो कि आज मुझे किस जगह पर कितना पैसा लग रहा है। जैसे ही आप देखोगे कि मुझे इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग पे इतना पैसा लग रहा है, इट विल गिव यू अ मोटिवेशन टू स्टार्ट रिड्यूसिंग दैट। टू स्टार्ट रिड्यूसिंग दैट आपको प्रिवेंशन पे जाना होगा, विच विल एक्चुअली सेव यू मनी। ये थी हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी। पहली थी वैल्यू को वेस्ट से सेलेक्ट करना, दूसरी थी उस वेस्ट को, उन इफेक्ट्स को मेजर करना और ये देखना कि उससे हमको कितने पैसे की चोट पहुंच रही है। तीसरी स्ट्रैटेजी है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, वैल्यू स्ट्रीम को देखना। तो ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, कॉम्प्लेक्स थोड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि क्या है। आप ये समझो कि ये आपका पूरा प्रोसेस है। ऊपर नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है। थिंक दैट दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम एंट्री, रॉ मटेरियल एंटर किया, वहां से लेकर के एग्जिट, टिल रॉ मटेरियल लीव्स फॉर कस्टमर। नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक दिस अप इनटू एक्टिविटीज। तो लेट अस से कि जो सेकंड लाइन में आप देखोगे, देयर आर ब्रेक्स इन दिस प्रोसेस। सो लेट अस से द फर्स्ट सेक्शन इज माल आया और आकर के स्टोर में बैठा हुआ है। सेकेंड स्टेप, लेट अस अज्यूम वो बैठा हुआ से उठ करके वो पहले ऑपरेशन पे गया। थर्ड स्टेप जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, वहां पर पहला ऑपरेशन हुआ, फिर वो इंस्पेक्शन के लिए रुका, एंड सो लेट अस से इस तरीके का आपका प्रोसेस है। तो पहला काम वैल्यू स्ट्रीम को स्टडी करने में, जो आपके पास ब्लैक बॉक्स की तरीके से एक वैल्यू स्ट्रीम बनी हुई है एंट्री से एग्जिट तक, पहले आपने उसको उसके स्टेप्स में, प्रोसेस में ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो हमने स्ट्रैटेजी 1 में देखा था, वो 3 चीजें कि कोई चीज वैल्यू एडेड है या नहीं। तो हम क्या करें, इस पूरी वैल्यू स्ट्रीम को लेकर के उसके एक एक स्टेप को इवैल्यूएट करें। रेड मतलब वेस्ट है, ग्रीन मतलब वैल्यू एडेड है। सो वैल्यू स्ट्रीम मैप में हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे प्रोसेस को देखते हैं और हर एक इंडिविजुअल स्टेप को हम वेस्ट या वैल्यू में कैटेगराइज करते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी होती हैं उसमें भी 95% तक वेस्ट होती है, काम होता है। और मैं समझता हूं अगर आपको अभी ये बात नहीं क्लियर हो रही, बिकॉज जब आप देखते हो तभी आपको समझ में आता है कि ये किस तरीके से हो रहा है। बट ज्यादातर जो हमारा पैसा जा रहा है, ज्यादातर जो हमारा एफर्ट जा रहा है, वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करने में जा रहा है। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करने में बहुत थोड़ा सा पैसा जाता है। जो कंपनीज अपनी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेती है, वो कम पैसे में प्रोडक्ट बना सकती हैं और वो अपनी डिमांड बढ़ा पाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रेंट्स ढूंढते हैं। अब हो सकता है कि कुछ चीजें हम इमीडिएटली हमको कंस्ट्रेंट मिल जाए, हम हटा सकें, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं हटा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखूं, तो जो सेकेंड स्टेप था, अगर ये मेरा मूवमेंट और इंस्पेक्शन का स्टेप था, मैं ये भी कर सकता हूं कि स्टोरेज को मैं ला करके सीधे जहां पर स्टोर होना है वहीं पर ही रख दूं। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज अभी बनी रहेगी, उसका कंस्ट्रेंट मैं नहीं ब्रेक कर पा रहा हूं, बट जिनका कंस्ट्रेंट मैंने ब्रेक कर दिया वो स्टेप्स हट गए। जैसे ही वो स्टेप्स हट गए या छोटे हो गए, मेरी वैल्यू स्ट्रीम छोटी हो जाएगी। इसका मतलब टोटल कॉस्ट मेरी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ मैंने जो आपको बताया है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक, बहुत ही सिंपल तरीका है, जो जस्ट कि आप एज अ लीडर समझ सको। टिपिकली ये काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिटी वाले हैं और जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट वाले लोग हैं वो डिटेल में करें। बट एज अ कॉन्सेप्ट
तरीका क्या है? आपने शुरुआत किया, सबसे पहले एंड टू एंड मैप किया प्रोसेस को और उसको ब्रेक कर दिया स्टेप्स में। हर स्टेप पे फिल्टर लगाया कि ये वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड है। जो नॉन वैल्यू एडेड पता चल गए उनके ऊपर सवाल किया कि ये क्यों नॉन वैल्यू एडेड हो रही है, और अगर मैं उस कंस्ट्रेंट को ब्रेक कर सकता हूं तो उस कंस्ट्रेंट को ब्रेक करके मैंने उसको श्रिंक कर लिया। मेरे एक्सपीरियंस में हमने जो साइकिल टाइम्स हैं उनको हाफ और 1/3 भी किया हुआ है। इससे हमको दोहरे फायदे मिलते हैं, सिर्फ एक कॉस्ट का फायदा नहीं मिलता है, इससे हमको एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। अगर आप ये देखो कि जितने भी रेड हैं सेक्शंस ऊपर की साइड में, ये सारे इन्वेंट्री हैं। ये वो जगह है जहां काम कुछ नहीं हो रहा है, मटेरियल शॉप में बैठा हुआ है। जब मैं इसको कम करता हूं तो ना सिर्फ मेरी कॉस्ट कम होती है क्योंकि मैं उस पर एफर्ट कम लगा रहा हूं, बट मेरी इन्वेंट्री भी कम होती है। इन्वेंट्री कम होने का मतलब है मैं कस्टमर को फास्टर सप्लाईज दे सकता हूं। इफ आई कैन गिव फास्टर सप्लाईज टू द कस्टमर एंड आई हैव टू स्टोर लेस, लीड टाइम इज लेस, देन आई कैन बिकम फेवरेट ऑफ द कस्टमर बाय गेटिंग मोर डिमांड। तो ये जो वैल्यू स्ट्रीम वाला एस्पेक्ट है, ये तीनों सीज पर काम करता है। ये आपके कॉस्ट को कम करता है, ये आपके कैश फ्लो को इंप्रूव करता है क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कम हो जाती है, और क्योंकि आपका ओवरऑल लीड टाइम कम हो जाता है, उस लीड टाइम के साथ में आप कस्टमर को जल्दी जल्दी दे सकते हो। तो जहां कस्टमर को क्राइसिस आती है, जहां कस्टमर कहता है मुझे जल्दी चाहिए, आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर रिस्पॉन्ड कर दोगे। जब आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर रिस्पॉन्ड कर पाओगे तो कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करेगा और थोड़ा बहुत प्राइस में निगोशिएशन का रिलैक्सेशन देना शुरू कर देगा। सो बाय फार द बिगेस्ट लेवर दैट यू हैव इज लुकिंग एट योर वैल्यू स्ट्रीम एंड श्रिंकिंग द वैल्यू स्ट्रीम so that you can become much more efficient. बाकी के 3 जो इसकी strategies हैं, I will not go into the details. I have already told you about them. But standardize, you prepare work standards, you prepare how will you react if some problem happens, and you go for workplace management. आपने कुछ लोगों ने 5S देखा होगा, शायद कुछ लोगों ने किया भी होगा। I'm not getting into the details because ये काफी लंबे टॉपिक हो जाते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव आज यहां पर आपको ये क्लियर करना है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है जहां पर आप ये एक्टिविटीज बिगिन करके अपने बिजनेस को न सिर्फ संभाल सकते हैं बट ऐसे समय पर ग्रो भी कर सकते हैं। विजुअल कंट्रोल्स के बारे में मैं बता चुका हूं, मिस्टेक प्रूफिंग के बारे में मैं बता चुका हूं, तो वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। लेट अस गो टू द थर्ड सी। अभी तक हमने कस्टमर डिमांड को देखा है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 6 स्ट्रैटेजीज देखी है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम देखेंगे कि हम अपने कैश फ्लो के लिए क्या कर सकते हैं। तो कैश फ्लो पे अगर आप देखो तो आपके पास 2 बड़े सेट्स हैं। एक है रिसीवेबल और पेएबल। ये वो है जिसमें हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम पे करेंगे, अकाउंट्स पेएबल, और एक है रिसीवेबल जिसमें हमने उधार दिया हुआ है। एक में हमने उधार लिया हुआ है, एक में हमने उधार दिया हुआ है, और ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो आप बहुत तरीके से ट्रेड ऑफ्स देख सकते हो कि जैसे आपके पेमेंट टर्म्स मान लो 90 दिन के, आप इवेल्युएट कर सकते हो कि अगर हुंडी एक्सचेंज करते हैं इतने परसेंटेज कटता है तो क्या मेरे लिए बेटर है, मेरे लिए हुंडी देना बेटर है या मेरे लिए उतने टाइम के लिए अपने कैश को ब्लॉक करना सही है। ये केस बाय केस होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, बट तरीका यही है देखने का। आप हर कॉस्ट को कैप्चर करने लग जाओगे, जैसे ही इसके इंपैक्ट को कैप्चर करने लग जाओगे आप रिसीवेबल और पेएबल पे बिजनेस लेवल पे डिसीजंस ले पाओगे। ये ऑपरेशनल लेवल नहीं है, ये बिजनेस लेवल पे डिसीजन है। तो इस पे हम ज्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, हम प्राइमरली बात करेंगे इन्वेंट्रीज पे, बिकॉज यहां पर आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हमने पहले बात करी थी कि आपके कितने तरीके के, आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कितनी वैरायटी है, कितने तरीके के SKUs बनते हैं, ये सब यहां पर आता है। आपकी कस्टमर की डिमांड कितनी फ्रीक्वेंटली आती है, कितना फ्लक्चुएशन होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इन्वेंट्री में 2 बड़ी कैश फ्लो के लिए 2 बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं इन्वेंट्री में। जैसे हमने 6 स्ट्रैटेजीज कॉस्ट के लिए देखी थी, 2 बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम कैश फ्लो के लिए स्पेसिफिकली देखते हैं। पहली है कि हम वैल्यू को फ्लो करें, मतलब वैल्यू को रुकने ना दें अपनी जगह पर, और दूसरी है कि हम चीजें तभी बनाएं जब कस्टमर को चाहिए। और इन दोनों को कैसे करते हैं उसको हम वेरी ब्रीफली हम देखेंगे बिफोर वी मूव। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो क्यों ब्रेक करता है। तो जो मैंने आपको वैल्यू स्ट्रीम दिखाई थी कुछ समय पहले, आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये रफली इस तरीके की दिखाई देगी।
तो जो ऊपर का हिस्सा है ये बता रहा है इन्वेंट्री, ये बता रहा है जहां फ्लो हो नहीं रहा है। ये रेड सेक्शन है जो बैठे हुए हैं, जहां पे मटेरियल आपके प्लांट में बैठा हुआ है। हो सकता है शॉप 1 में बैठा हो सकता है शॉप 2 में बैठा हो सकता है रॉ मटेरियल बन के बैठा हो, और हो सकता है फिनिश्ड गुड्स बन के बैठा हो। बट रेड वाले जो ऊपर वाले सेक्शन है ये टिपिकली डेज में आते हैं, क्योंकि जब शेड्यूल होता है इन्वेंट्री बनकर के बैठ जाती है, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन कभी 10 दिन कभी 50 दिन बाद वो मूव करती है एक लेवल से दूसरे। तो जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉन फ्लोइंग है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है जहां पर एक्चुअल ऑपरेशन हो रहा है वो फ्लोइंग है। तो ये मुझे क्या बताता है कि आपको 35 मिनट का वैल्यू ऐड करने के लिए अगर 6 दिन लग रहे हैं, अगर आप वैल्यू को फ्लो कर सकते तो ये जो 2 दिन 2 दिन 2 दिन है, अगर इस वैल्यू फ्लो को अगर आप कंट्रोल कर सकते, इन्वेंट्री कम कर सकते, तो चीजें आपके पास सही आ जाती। करने का तरीका क्या है? इजियर सेड दैट डन, आसान है, करना मुश्किल है। थोड़ा इस बात पे देखते हैं कि करने में क्या है। उसके लिए समझना जरूरी है कि फ्लो क्यों ब्रेक करता है। पहला जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमने ज्यादातर जब हम ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल लेआउट बनाते हैं। मेरी प्लेटिंग शॉप यहां रहेगी, मेरी मशीनिंग शॉप यहां रहेगी, मेरी कास्टिंग शॉप यहां रहेगी, मेरी फिनिशिंग शॉप यहां रहेगी। तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप बना दिए। अब क्या होगा, हमारे पूरे प्लांट में मटेरियल घूम रहा होगा, क्योंकि मशीनें अगल बगल है नहीं, तो वो एक शॉप से, एक शेड से दूसरे शेड के बीच में मूव कर रहा होगा, और इसके मूव करने की वजह से आपको बना बना के रखना होगा। आप तुरंत एक पीस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक पीस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप एक ट्रॉली में बैच बना के रखोगे और मूव करोगे। जैसे ही आप बैच बनाते हो वैसे ही आपका फ्लो ब्रेक हो जाता है, इन्वेंट्री बन जाती है। तो इसका तरीका क्या होगा, अगर आपका फंक्शनल लेआउट है कि आपने ऑपरेशन वाइज अगर आपने शॉप्स बनाई हुई है, तो हमको ये देखना है कि पूरी ऑपरेशन को एक लाइन में कैसे बना सकते हैं, कि इधर से बना, स्टोर करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया, नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया, नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया। इसको कहते हैं सिंगल पीस फ्लो। हर जगह हो सकता है ये पॉसिबल ना हो, बट अगर मान लो ऊपर जो आपको 6 दिन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से अगर 6 में से 3 में से 2 भी जगह अगर आपने कर लिया ये, तो आपका जो इन्वेंट्री है वो 6 दिन से घट करके 2 दिन आ जाए। सो इन्वेंट्री पे हमने ऐसे भी काम किए हुए हैं, और बड़ौदा के आसपास ही काम किए हुए हैं, जहां पर 45 टन की इन्वेंट्री को हम 50 टन की इन्वेंट्री को हम 15 टन पे लेकर के आए, और डिलीवरी परफॉर्मेंस करीब 30-40% से बढ़ करके 90% ले जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप सही जगह पर काम करें। सो पहला रीजन है कि जब हम फंक्शनल लेआउट बनाते हैं तो हमको एक शॉप से दूसरी शॉप के बीच में ट्रांसफर करने के लिए इन्वेंट्री बनानी पड़ती है, और वो हमारा फ्लो ब्रेक करती है। तो उसका ऑप्शन है अगर हम सेल डिजाइन करें या सिंगल पीस फ्लो डिजाइन करें। दूसरा रीजन होता है लाइन बैलेंसिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऑपरेशन ज्यादा तेज चल रहा है, दूसरा ऑपरेशन स्लो चल रहा है, तो दोनों के बीच में इन्वेंट्री भर जाती है और हम बैलेंस नहीं कर पाते लाइन को। तो कहीं पर ज्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, मुझे इन्वेंट्री से बैलेंस करना। जब आप सिंगल पीस फ्लो बनाते हो या सेल बनाते हो तो ये प्रॉब्लम भी टेक ओवर हो जाती है। बहुत जगह पर ये बॉटलनेक ऑपरेशंस की वजह से होता है कि आपकी पीछे की चीज तो बन रही है, लेकिन एक ऑपरेशन ऐसा है जहां पर प्रॉब्लम आई हुई है, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम बॉटलनेक ऑपरेशन को डी बॉटलनेक करके भी फ्लो बनाते हैं। ब्रेकडाउन से एक रीजन होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मालूम है कि आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है, इसमें ब्रेकडाउन आते रहेंगे मशीन में। तो आप ये चाहते हो कि भाई ब्रेकडाउन आ जाए तो भी मैं कस्टमर को चीजें दे पाऊं, तो आप अपने आप को सेफ करने के लिए एक सेफ्टी स्टॉक बना करके रखते हो, वो भी इन्वेंट्री है। बहुत बार आपको ये डर रहता है कि एब्सेंटिज्म हो जाएगा, पीपल विल नॉट बी अवेलेबल, या लोग कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखो तो इन्वेंट्री और कुछ नहीं है, इन्वेंट्री वो बफर है जो आप अपने आप को बचाने के लिए बनाते हो। समझने वाली बात यह है कि अगर वो कंस्ट्रेंट ही ब्रेक कर दो जिसकी वजह से आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत पड़ रही, तो आपका ओवरऑल कैश फ्लो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बट एक बहुत बड़ा काउंटर इंट्यूटिव चीज जो हमने देखी है, जो आती है, वो है फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हो बिना सोचे समझे, तब इन्वेंट्री बहुत बढ़ती है, और वो इस वजह से बढ़ती है कि जो ऊपर की जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी होने लग जाती है। हम चाहते हैं कि हर मशीन लगातार चलती रहे,
लेकिन जो बॉटलनेक है उससे ज्यादा तो आप प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो। तो जब आप लोगों को पुश करते रहते हो कि मशीन खाली नहीं रहनी चाहिए, कुछ बना के रख लेती है, फिर वो इन्वेंट्री बन जाती है और वो इधर उधर होती जाती है। तो इसको बैलेंस करना और फ्लो इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपैक्ट क्या होता है? जब फ्लो टूटता है तो इन्वेंट्री बनती है, आपको ज्यादा लोग चाहिए होते हैं और डिफेक्ट भी बनते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करो। और टिपिकल स्ट्रैटेजीज है सिंगल पीस फ्लो बनाना। ये हुई पहली स्ट्रैटेजी कैश फ्लो के लिए। कैश फ्लो के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी है कस्टमर की डिमांड से पुल क्रिएट करना। अब हम ज्यादा बड़ा बैच बना करके क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम बड़े बड़े बैच बनाते हैं कि बड़ा बैच बनाएंगे तो पर पीस हमको कम कॉस्ट करेगा, लेकिन वो कॉस्ट हमको इन्वेंट्री में जाकर के करता है। तो इसके लिए आई विल नॉट वंस अगेन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुल शेड्यूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज का टाइम हमारे पास काफी कम है। मेरा मेन काम है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं कि हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमको हमेशा लगता है कि हमको बड़े बैच साइज चाहिए, और बड़े बैच साइज इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हमारा चेंज ओवर बहुत बड़ा होता है। तो जिस कंपनी की मैं बड़ौदा में बात कर रहा था, वहां पर हमने क्या किया, एक चेंज ओवर था जो 3 घंटे लेता था, जिसकी वजह से हम काफी सारे अलग तरीके से काम करते थे। जब हमने उस चेंज ओवर को स्टडी किया और हम उसको लेकर के 15 मिनट ले आए, आप समझो 180 मिनट से जब हमने उसको 15 मिनट कर दिया, तो मुझे चेंज ओवर की तकलीफ नहीं रह गई, मैं क्विक चेंज ओवर कर सकता था। क्योंकि मैं चेंज ओवर क्विक कर सकता था, बहुत सारी और चीजें मैनेज हो गई की जरूरत। तरीके हैं जो इन्वेंट्री को कम करते हैं। स्पेसिफिक आपके और कहां काम करना है ये देखना पड़ेगा। बट आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव है आपकी आईज को ओपन करना, आपकी आंखों को खोल करके देखना कि सब तरफ खाली परेशानी भी है, अपने काम को इंप्रूव कर। अगर आप वो तरीके अपना लेते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर मैं इन सारी चीजें जो मैंने अभी 3 C's के बारे में बताई, इसको अगर मैं समराइज करूं कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो, हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड, आई कैन गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डिसाइड द वैल्यू प्रोपोजिशन। जब हम बात कर रहे थे डिमांड की, उसमें हमने वैल्यू प्रोपोजिशन देखा था। हम किस कस्टमर को क्या और किस वैल्यू प्रोपोजिशन पे देंगे, क्या चीज जो हमारी स्टैंड आउट करेगी। अगर हम अपने कंपटीशन से किसी भी स्पेसिफिक चीज पे स्टैंड आउट नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लेना हम हमेशा डिस्काउंट गेम में फंसेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप कोई चीज लॉन्च करते हो, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, डिस्काउंट आते जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर क्या, कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है जो आपसे कम में देने लग जाता है। तो सबसे पहले आपका वैल्यू प्रोपोजिशन डिसाइड करना, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म में बचाएगा। अभी तो आप डिस्काउंट दे लोगे, बट जितना डिस्काउंट देते जाओगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती जाएगी। तो पैसा कम करके वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने के बजाय हम ऐसा क्या दे सकते हैं कस्टमर को जो बाकी लोग नहीं दे सकते। पहली चीज है डिसाइड वैल्यू प्रोपोजिशन। नेक्स्ट, इस वैल्यू प्रोपोजिशन के बेसिस पे आपने मार्केट और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सेट कर लिया कि ये हम देंगे, ये हम नहीं देंगे, यहां हम भेजेंगे, यहां। इसके बेसिस पे कस्टमर क्या वैल्यू करता है, क्या वैल्यू नहीं करता है। जो हमने पहली स्ट्रैटेजी देखी थी, वैल्यू और कॉस्ट को सेट आउट, पहली स्ट्रैटेजी कॉस्ट, वो यहां पर पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हमने अपना वैल्यू प्रोपोजिशन सेट कर लिया, कस्टमर के लिए क्या क्या काम वैल्यू एडेड है और क्या क्या काम वैल्यू एडेड नहीं, वो डेफिनेशन बना। जब आप वो डेफिनेशन बना लोगे तो नेक्स्ट काम आपके लिए काफी सिंपल हो गया। वो हर चीज जो वैल्यू एडेड नहीं है, आप उसको मेजर करना शुरू कर दो, उसकी कॉस्ट कितनी है। जैसे ही आपको कॉस्ट लगातार पिंच करने लगेगी, और ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे ही हम रिव्यू शुरू करते हैं ना कि आज मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इतनी थी, आज मैंने इतने पैसे खर्चा कर दिए जो नहीं होने थे, जैसे ही आपको पैसा जाता हुआ दिखाई देने लग जाता है। मोर इंपॉर्टेंटली जो आपके यहाँ रेजिस्टेंस आता है वो मिडिल मैनेजमेंट से आता है। उनको हम काफी बार ये लगता रहता है कि आप उनसे ज्यादा काम करवा रहे हो, अपने कॉस्ट को विजिबल करा देते हो। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं हो जाती, ये प्रॉब्लम उनकी हो जाती है कि देखो भाई, तुम्हारे काम की वजह से, तुम्हारे डिसीजन की वजह से कंपनी आज इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रही है, और तब वो चेंज शुरू हो जाता है। सो चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट को विजिबल करना। नेक्स्ट स्टेप,
विजिबल जनरेट हो गई, लोगों को दिखाई देने लग गया कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, ये बात एस्टैब्लिश हो गई कि प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आया, वैल्यू स्ट्रीम बनाओ और वैल्यू स्ट्रीम को देखो अब इसमें कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, व्हाई इज देयर अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, आर द कंस्ट्रेंट्स, what are the constraints that are leading to this non activity being included as a part of the value stream. ये एक्टिविटी क्यों करनी पड़ रही है, और यहां पर बहुत बहुत अजीब अजीब से कंस्ट्रेंट आते हैं। जैसे एक जगह पर अभी तो मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग दे रहा था, ऐसे भी कंस्ट्रेंट्स आए हैं जो हमने देखे हैं कि में लेट प्रोसेसिंग हो रही थी, क्लेम्स देर से प्रोसेस हो रहे हैं। तो भाई पता किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि क्योंकि आपका जो है, जो फील्ड ऑफिस है, उसमें वो लोग पहले नई पॉलिसी लिखने और बाद में क्लेम पे फोकस करते हैं। तो क्लेम आते हैं सारे शाम को क्लेम वो लोग डालते हैं, तब तक हेड ऑफिस का स्टाफ घर जा चुका है, अगले दिन आकर के क्लेम बांटते हैं। जब वो क्लेम बांटते हैं तो उनके पास पहले ही पाइपलाइन में और कुछ चीजें होती हैं, तो जो क्लेम आज डाला है किसी, उस प्रोसेसिंग कल छोड़ करके परसों तीसरे दिन शुरू होती है। ये कंस्ट्रेंट है। तो हमने क्या क्या चेंजेस किए, ये के लिए एक कट ऑफ बना दिया कि जो भी आपके पास क्लेम 3 बजे से पहले आएगा, वो क्लेम 4 बजे से पहले आप जो अपना नई पॉलिसी इशुएंस है वो बाद में करते हैं, लेकिन जो क्लेम आज के जो उसमें स्टैंप पड़ा हुआ है टाइम का, जिसका भी 3 बजे से पहले है, वो 4 बजे तक आ जाना चाहिए। और दूसरा हमने क्या किया, हेड ऑफिस में स्टैगर कर दी शिफ्ट्स, कुछ लोग अर्ली आएंगे और कुछ लोग थोड़ा लेट आएंगे, जिससे अब जो शिफ्ट बन गई ऑफिस बैक ऑफिस में, वो बन गई सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। इससे क्या हुआ, अर्ली भी काम, बाद में भी काम हो जाता है। अगर आप कंस्ट्रेंट को ब्रेक कर दोगे तो फ्लो श्रिंक हो गया। ये करके इस कंपनी में हम ये कर पाए कि एक दिन क्लेम अप्रूवल होना शुरू हो गया, एक दिन में क्लेम अप्रूवल। ये तो एक पीस था, इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हम कंस्ट्रेंट ब्रेक करते गए, और वो अप्रूवल जो 5 से 6 दिन में होता था, कंपनी वाज ऑलरेडी वेरी गुड। गवर्नमेंट कहती है कि 15 दिन में होना चाहिए, द कंपनी वाज ऑलरेडी डूइंग इट इन 5 days और सो, बट वी ब्रॉट इट टू 1 day क्लेम अप्रूवल, कि अगर आपने आज क्लेम डाला है तो कल आपका अप्रूवल आ जाएगा। और हम ये क्यों कर सके, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट्स को ब्रेक कर रहे थे। कंस्ट्रेंट्स को ब्रेक करने वैल्यू स्ट्रीम को स्टडी किया और उस वैल्यू स्ट्रीम में आइडेंटिफाई किया क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, क्यों है, क्या कंस्ट्रेंट की वजह से, और फिर उनको ब्रेक करना शुरू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप कंस्ट्रेंट ब्रेक करना शुरू करते हो तो आपको पता चल जाता है अब क्या क्या एक्टिविटीज बची है। उन एक्टिविटीज को एक के पीछे एक लगा दो, जिससे कि फ्लो बनता रहे। एक से फ्री हो तुरंत दूसरे के पास दूसरा काम शुरू हो जाए, दूसरे से फ्री हो तुरंत तीसरा काम शुरू हो जाए। तो हम फ्लो इंप्लीमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, इन्वेंट्री कम होती है, इससे लीड टाइम कम होता है, और हमारा कैश फ्लो रिक्वायरमेंट तो कम होता ही है, कॉस्ट भी कम हो जाती है। फाइनली पुल को इंप्लीमेंट करने का मतलब है तभी बनाएं जब कस्टमर को जरूरत है। इससे आपकी ऑब्सोल्यूशन, इससे आपकी अननेसेसरी इन्वेंट्री डिफेक्ट्स, ये सारे हट जाते। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, आज का सेशन बहुत छोटा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट पुल को क्रिएट करने से ऑलमोस्ट हाफ 1/3 तक हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 50 टन की इन्वेंट्री को हम अगर हम 15 टन पे ले आए और डिलीवरी परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया, तो आप समझ हो कि ये मेथड्स कितने ज्यादा इफेक्टिव। इनफैक्ट इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के एक वेयर हाउस में वो महीने में 3,500 पीसेस पैक कर पा रहे थे, हमने पहुंचा दिया, एक फोर्कलिफ्ट कम कर दी और 3 लोग कम कर दिए। सो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होता है। ये सारे इन्हीं मैकेनिज्म्स से होता है। जो आपको ध्यान रखने वाली जरूरत है एज अ लीडर, कि ये सारी चीजें आप करने के बाद एक बार से काम नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस मूव करता रहेगा, आपके कंपटीशन भी इंप्रूव करते रहेंगे। इफ यू डू नॉट कीप ऑन गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, एक दिन आप फिर इसी सिचुएशन में खड़े हो जाओगे। सो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज फर्स्ट few steps,
कि अब आपको ये रिपीट करते जाना है, अब आपको ये ऑनगोइंग बेसिस पे करते जाना है, जिससे कि आप अपने कंपटीशन से हमेशा आगे रह सकें। तो आज का 1 घंटे में व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज, 1, दिस इज अ प्रॉब्लम डेफिनेटली, बट सब कुछ लॉस्ट नहीं है, किया जाता है। वो 3 चीजें जिस पे आपको काम करना है वो है डिमांड, कॉस्ट और कैश फ्लो। यही आपके 3 बिजनेस के लेवर्स हैं। डिमांड के लिए उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। कॉस्ट के लिए हमने 6 स्ट्रैटेजीज देखी हैं जिनसे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए हमने अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल और इन्वेंट्री को देखा, जिसमें इन्वेंट्री में हमने फ्लो और पुल की 2 स्ट्रैटेजी, और इन सबको कंबाइन करके एक रास्ता बनाया है, एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता बनाया है कि अगर लोगे तो बहुत जल्दी आप इस चीज से बाहर निकल आओगे, जो करंट क्राइसिस है उससे आप बाहर निकल आओगे। So that is what I wanted to convey to you in this an hour-long session. You can obviously contact us. You can contact PI. You can contact us directly at these parameters. And what I had to say, I have said. We can go on for a panel discussion. We can go on for a question and answer on some of these aspects. So Premal, Yes, thank you very much, Mr. Dixit. May I request all the participants to key in your questions? You can post your questions in the chat box. There is a request from one of the participants to share the presentation. We will share the presentation by tomorrow. Requesting participants to put their questions in the chat box. Tiba-tiba chat aja. Gimana dulu di bisa pakai nabi ini. We didn't hear from Mr. Manoj Agrawal today, so maybe Yes, sir. Yes, sir. if you would like to, comment. Okay. First of all, I would like to thanks FCI, especially to you, sir, to organize this session and give us the opportunity where we could share in the very shortest possible time. And I believe this is a start where we could share our journey in terms of 3C challenges, how we can handle it. And I think there is not much questions coming on this chat, but we are expecting a lot. Maybe after this webinar is over and people go back to their workplace and thinking. So we are always welcome through you, even directly, to get those questions and we can answer you. Thank you very much. We have a question, if you could answer. yes, India is definitely a priority.
and it is more price sensitive than the West. I would want you to recognize, आप ये देखें कि price is based on how much of what you are doing is valuable to the customer. So pricing में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, बट आप प्राइसिंग पे काम कैसे कर सकते हो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कस्टमर की वैल्यू को कितना समझा है. जो स्ट्रैटेजी जो आप कह रहे हो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, know what your market is. You have to study and you have to look at why are they paying for what they are paying. बहुत बार ऐसा होता है कि आप नया प्रोडक्ट लेकर के जाते हो और वो प्राइस उस प्राइसिंग में फिट नहीं होता है. प्राइस का ट्रेंड रहता है कि अगर कोई इंफीरियर प्रोडक्ट मतलब जो बहुत कॉमन होता जा रहा है, वो धीरे धीरे उसका प्राइस कम होता जाएगा. सो देयर इज नो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको ये 5 मिनट में या 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकूं. बट सबसे पहला आपका रिक्वायरमेंट है कि आप अपने कस्टमर को, अपनी मार्केट को समझो. अगर आपकी मार्केट में रिक्वायरमेंट ही 20 रुपए के प्रोडक्ट की है, आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो 50 रुपए का है, तो वो आपकी प्राइसिंग या वो आपका पोर्टफोलियो चलेगा नहीं. मर्सिडीज कितनी भी अच्छी गाड़ी हो सकती है, लेकिन ऑल्टो ही ज्यादा बिकेगी क्योंकि डिमांड उसी प्राइस रेंज की है. तो इसलिए किस प्राइस रेंज में आपको प्ले करना है और उस प्राइस रेंज में आपको कैसे अपनी कॉस्टिंग सेट करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट. प्राइसिंग ऐसा सिंपल नहीं है कि हम अपने प्राइस को कितना रखें, प्राइस को कॉस्ट के साथ मैच करके रखना. आपको अभी एग्जांपल दिया था इंडिगो का, उसके पैरेलली आप एग्जांपल देखिए जेट एयरवेज का. उन्होंने प्राइसिंग तो मैच करने की कोशिश करी, लेकिन अपनी कॉस्टिंग को मैच नहीं किया, क्योंकि जो उनका काम करने का तरीका था वो अलग तरीके से था. उन्होंने प्राइसिंग के लिए तो उन्होंने फाइट करी लो कॉस्ट एयरलाइन से. उसके लिए उन्होंने सहारा को भी टेक ओवर किया, इसी तरीके से किंगफिशर ने डेक्कन को भी टेक ओवर किया. बट जब आपकी कॉस्टिंग को सूट नहीं करता है तो सूनर और लेटर यू विल गो आउट ऑफ बिजनेस. सो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग. यू हैव टू ऑलवेज लुक एट कि जो आपके प्राइस सेगमेंट से नीचे है उससे ज्यादा क्या दे सकते हो, जिससे कि कस्टमर को आप ऊपर के सेगमेंट में लाने की कोशिश करो, और जो आपसे ऊपर है प्राइस सेगमेंट में उसके अगेंस्ट में आप कॉस्ट पे क्या दे सकते हो. तो जो नीचे वाला है आपके प्राइस टारगेट प्राइस सेगमेंट से, जो नीचे वाला है उसको आप एक्स्ट्रा वैल्यू देने की बात करते हो, और जो आपसे ऊपर है उस कंपटीशन के अगेंस्ट में आप लोअर प्राइस देने की बात करते हो. तो ये दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी होती है जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टिपिकली होती है. बट दिस इज अ लार्जर सब्जेक्ट. It requires more discussion and it requires more understanding than a small one. There is one more question from Mr. Kalpesh Solanki. He mentions that if your competitor is giving A-class product at a very affordable price, then what would be our strategy to gain that customer? Can you repeat that? I did not get it. Competitor is giving A-class product at a very affordable price, then what would be our strategy to gain that customer? Okay, the first thing will be to set your. I'll take you through. The strategy remains same. I'll just take you through this section, and maybe it will be helpful to look at this. आपकी स्ट्रैटेजी ये है. सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि कस्टमर दूसरे वाले से अगर ले रहा है तो दूसरा वाला जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है वो उसके मुकाबले में कहाँ बैठता है, कौन से मार्केट है, कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए. हो सकता है आप जो दे रहे हो बहुत अच्छी चीज हो, बट वो उस कस्टमर के काम की ना हो. तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. हो सकता है वो आपकी प्लेइंग फील्ड ही ना हो. जो कॉम्पिटिटर ए क्लास प्रोडक्ट आपका लोएस्ट प्राइस में दे रहा है, हो सकता है वो सेगमेंट आपके लिए ठीक ही ना हो. तो ये जो पहली 3 स्टेप्स हैं ये बताएंगे कि आप सही मार्केट में प्ले कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कंपनी की ही स्ट्रेंथ नहीं है उस सेगमेंट में करने की, तो सूनर और लेटर यू विल हैव टू मूव आउट.
अगर आपकी स्ट्रेंथ, आप किस पे इवैल्यूएट कर सकते हो? पहले आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी और फिर प्राइसिंग पे जाना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि अगर इजी प्राइसिंग करी है तो आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। इस तरीके की क्राइसिस में जो कंपनी स्ट्रांग होती हैं, एस्पेक्ट्स पे काम करती हैं, वो बचती हैं। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको दिखाई थी। यही करना होगा। ऐसा कोई इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे। यहां पर हम लोग सिर्फ बैंडेड लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। और अगर आप अभी का देखें, अगर हमको आत्मनिर्भर होने पर काम करना है तो शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, हमको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी। Is the answer understood? Yes, he's replied. Thank you. Our products are tailor-made. What can we do in this case? ये एक और क्वेश्चन है। आपके लिए तो सबसे अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट टेलर मेड है तो आपके पास जो पहला जो सेक्शन है स्ट्रैटेजी का, वो तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कस्टमर के हिसाब से वैल्यू को सेट किया है। तो इसमें जो आपकी एंट्री होगी वो वैल्यू स्ट्रीम से, आप एंटर ही करेंगे वैल्यू स्ट्रीम से। देखना शुरू करेंगे कि अब ये अगर टेलर मेड प्रोडक्ट है तो इसके कहां पर मैं खर्चा कर रहा हूं और क्या उसके लिए मुझे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसपे मैं पैसे तो पे कर रहा हूं, उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा इमीडिएटली वैल्यू स्ट्रीम पे जाइए और वैल्यू स्ट्रीम में से कंस्ट्रेंट्स के साथ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बाहर करना शुरू करिए। एक और है, सर फॉर अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स आर मटेरियल्स इन टाइम एंड डैमेज और वेस्ट और स्क्रैप मैनेजमेंट। कृष्णेंदु, मैं आपको ये कंफर्म करना चाहूंगा कि ये कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, ये सारे आउटकम्स हैं। ये किसी कंस्ट्रेंट की वजह से आ रहे हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच रहा है तो या तो आपका ट्रांसपोर्टर सही नहीं है, या आपका सप्लायर कैपेबल नहीं है, या वो पूरी प्रोडक्ट प्रोफाइल ही गड़बड़ है, वो जो रॉ मटेरियल प्रोफाइल है उसमें ही डिसरप्शंस है। तो कंस्ट्रेंट ये नहीं है कि मटेरियल टाइम से नहीं पहुंच रहा है, मटेरियल टाइम से नहीं पहुंच रहा एक आउटकम है। जैसे हो जाता है ना, अगर अभी क्योंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो लेट अस से बुखार आ रहा है, ये एक सिम्टम है। कंस्ट्रेंट का मतलब वो वायरस क्या है जिसकी वजह से ये चीजें हो। तो आप जो चीजें बता रहे हो, और यही प्रैक्टिस है जो हमको ढूंढना है, जो हमको करना है, वो यही है कि हमको जो दिखाई देगा वो कभी भी कंस्ट्रेंट दिखाई नहीं देगा, हमको हमेशा सिम्टम दिखाई देगा। तो जैसे आपने कहा, अगर मटेरियल टाइम से नहीं मिल रहा है तो ये सिम्टम है। इसके पीछे का कंस्ट्रेंट हो सकता है कि हम शेड्यूल से ना देते हो सकता है इसके पीछे का कंस्ट्रेंट हो कि हमारा सप्लायर हमको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उसके पास ज्यादा बड़े कस्टमर्स हैं, तो जब उसको मौका मिलता है तो वो उनको पहले सर्व करता है, हमको बाद में सर्व करता है। तो बीमारी क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, वो ढूंढना पड़ेगा। इसी तरीके से डैमेज और वेस्ट कंस्ट्रेंट्स नहीं है। डैमेज क्यों हो रहा है? ज्यादा इन्वेंट्री रखने की वजह से हो रहा है, पुअर मटेरियल हैंडलिंग की वजह से हो रहा है, वो कंस्ट्रेंट ढूंढना जरूरी है। तो ये पूरी प्रैक्टिस इसी बात की है कि आप सिम्टम से शुरू करके कंस्ट्रेंट पे कैसे जाओगे। कंस्ट्रेंट को नहीं, जब तक आप कोविड को नहीं हैंडल करोगे तब तक आप बुखार पे आप कुछ भी करते रहो, वो सिर्फ सिम्टम्स को हैंडल करेगा, इट विल नॉट हैंडल द डिजीज। सो कंस्ट्रेंट इज लाइक दैट वायरस, कंस्ट्रेंट इज लाइक दैट डिजीज। आपकी स्किल यही है कि आप वहां तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हो, और उसके लिए मैंने आपको इतने सारे टूल्स बताए। सो कृष्णेंदु, इज इट अंडरस्टूड? Yes, then comment. Mr. Bhattacharya, you wanted to speak, so I have unmuted you. You can speak now.
कृष्णेंदु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर, आपको टाइप करना है वो आप चैट में टाइप कर दीजिए। మరి గేమ్తోనే గేమ్ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पास रहा, उसका इंटरेस्ट भी तो देना चाहिए। वो इंटरेस्ट नहीं आया, जो सितंबर में रिफंड आया। व्हाट्सएप करो। We can go ahead with the next question. I guess there is problem. Mr. Bhattacharya able to. कल्पेश ने हैंड रेज किया है। कल्पेश, आप अगर अपना क्वेश्चन टाइप कर दे चैट में, इट विल बी मच मोर यूजफुल। स्पंदन में तो I guess Solanki's query is अगर भी स्पंदन में वॉइसेस क्लियर नहीं आ रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैट में टाइप कर दे, तो इट विल बी इजियर। Premal, can you help moderate this aspect, please? there is one more question. Sir, can you please guide me about OSMI consumption? I did not understand what you mean by OSMI consumption. आप मुझे थोड़ा सा अगर डिटेल्स बताओ तो मैं इस पे बात कर सकता हूँ। I would request the participant voice out the question. Participant is logged in under the ID of 166334947. You are on I guess we are done with the questions, so we can wrap up the session. Okay, so you can get in touch with the FGI. You can get in touch with Premal. You can get in touch with Manoj or me at any time. Okay, obsolete and slow moving inventory. Okay, I get the question. Okay, typically हमारे टर्म्स में हम इसको स्लॉब कहते हैं, इस वजह से I could not get it. Obsolete and slow moving inventory को हम लोग typically स्लॉब कहते हैं, slow and obsolete. But मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप रखी हुई इन्वेंट्री को कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब वो आप कर सकते हो बट वो इन टूल्स से नहीं आता है, वो इस तरीके से नहीं आता, वो आपको केस बाय केस हैंडल करना होता है। लेकिन स्लो और ऑब्सोलीट ना बने, इसके लिए ये सारे काम होते हैं। तो इसके लिए जो आपका पुल शेड्यूलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पुल शेड्यूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे कि नई स्लो एंड ऑब्सोलीट OSMI ना बने, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आप स्ट्रेटजी यूज करोगे वो पुल शेड्यूलिंग की है। जो पुराना स्लो ऑब्सोलीट बन करके रखा हुआ है, उसके लिए तो आपको जो भी बिजनेस का डिस्पोजल प्लान है, बिजनेस वाइज जो भी आपको लगता है कि ऐसे डिस्पोजल करना जरूरी है, वो करोगे। ये मैकेनिज्म्स आपके सिस्टम पे काम करते हैं कि भाई पुराना डिस्पोज कर दिया, लेकिन उतने ही समय में फिर नई इन्वेंट्री बन गई स्लो और ऑब्सोलीट, तो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए स्लो और ऑब्सोलीट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम करती है वो है पुल शेड्यूलिंग। I would like to just propose the vote of thanks
I'm really happy to propose the vote of thanks on behalf of Federation of Gujarat Industries to our esteemed guest speaker, Mr. Nitin Dikshit, and Mr. Manoj Agarwal for excellently addressing us on the webinar, which was 3C challenges, new normal, cost, cash flow, and customer demand. I'm sure the participants will have immensely benefited from this information which has been shared today. And we're really thankful to our panelists to join the session. You can get in touch with us for further details or any query. We would be happy to patch you up, the panelists. I would also like to thank all the participants to in this webinar to attend this session. And we would end this session with the national anthem. So I request all the participants to stand up for the national anthem. Thank you, everyone. It was a wonderful session. Yes, for today. And participants, you can get in touch with us for any further questions, queries, or you can get in touch with Mr. Dikshit and his team. Signing off. Thanks all. I'll just put in my contact details, and Manoj will put in his contact details just in case you want to get in touch with us. Thank you. मनीष की भी लिख देता हूँ because Manish is just is not there. अभी आप दे दो, and then we can. Thank you, Pramal sir. Thank you very much. Thanks, Premal, and thanks all the participants. It was a pleasure speaking with you. Thank you.